I am going to discuss how to solve the same problem which I have just solved by BHAM method to find out the initial basic feasible solution. Now I am going to optimize this transportation problem by MODI method. How to apply the MODI? Okay, this is the basic feasible solution. As I have already discussed, you can check it just from my previous video. Okay. Now, first, what you will do? First, check the number of allocations. The basic. This is the basic allocations. All these are the basic allocations. With the help of that, you have to find out the optimal solution. First, you check the number of basic allocations must be n plus n minus 1, where n is the number of rows, n is the number of columns, and minus 1. And in this case, how many rows? 1, 2, 3, 4. 4 rows and column is 5. ABCD E. 5 minus 5. That is, number of basic allocations required to apply MODI is 8. 8 allocations are required. 4 plus 5, 9 minus 1, 8. Okay. So 8 allocations are required to apply MODI. Now check how many basic allocations are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It is one less than the required basic allocations. The basic allocations in this problem is 7, but the required basic allocations is 8. That means one number allocation is less to go ahead to apply. Then what you will do? This is a case of degeneracy. This is called degeneracy case. Then how will proceed? Then you will proceed. You have to make it 8 allocations. For that purpose, mathematically, you have to put 1 allocations in this way. How? What way? In this way, so that you can put 1 allocations any cell, so that the total number of allocations would be 8. Artificially for the mathematical purpose, we are allocating epsilon negligible quantity, very negligible quantity. Say if it is in ton, your capacity is given as first from 200 ton capacity for factory 1. For factory 2, the capacity is 175 tons. Say your this quantity, say milligram, micro 0.0000 gram. Mathematically, just a very negligible small quantity, which will virtually not affect anything. Okay, that will not affect. For the mathematical purpose only, you have to bring it. Now it is clear. Now you will get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये satisfied. अच्छा, अगर ऐसा अगर होता है कि एक नहीं दो शॉर्ट हो गया, then what will do? Then again 2 artificially negligent quantity you have to put, so that you can proceed further to make it the total number of allocations n plus n minus 1. The mathematical process is such that if it is not these numbers of allocations, you cannot proceed. ठीक है ना? इसलिए ये जरूरी है. तो ये क्या है? A negligible quantity you have to put as basic allocation, so that the total required number of allocations as per condition is fulfilled. यहाँ पर 8 जरूरी था, लेकिन 7 हुआ था, तो इसलिए एक artificial दिया. Now the question comes on, why you have put this epsilon here? You have put here. You have put here. Why not? Why not? Why you have put here? The condition for putting this negligible quantity is that it should not form any square. You should not form in any square. Like that, I am showing you. You cannot put this, say, and to be square. Say this. You cannot epsilon here. It is not allowed. You cannot suppose because a square is being formed. It is not allowed. It is wrong. You cannot put here. But you can put here, no problem. If you put epsilon here, then there is no problem because no square is formed. The rule is you have to put epsilon in such a way so that no square is formed. Okay. So you can put here, no problem. If you put here epsilon, no square is formed, तो सारा वहाँ पर क्यों नहीं बैठा है? You can put it, no problem. तो कोई ना कोई जगह तो पुट करना होगा ना. तो इसलिए मैं यहाँ लेके चलता हूँ. But the advantage is always try to put epsilon in such a way so that the number of allocations you can get maximum in a row or column. अगर यहाँ नहीं रख के अगर यहाँ पुट करते हैं, स्क्वायर भी नहीं है, लेकिन देखो एक रो में only 2, इसमें only 2, तो उसमें भी हो जाएगा. There is no issue उसमें. जो कैलकुलेशन प्रोसेस थोड़ा सा टीडीएस रहता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो प्रैक्टिस है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ यू पुट मैक्सिमम allocations जहाँ है इन रो, you can see
वो थोड़ा आसान हो जाता है, इट विल बी ईजी। तो मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ हाउ इट विल बी ईजी, ठीक है, इट विल बी एडवांटेज फॉर यू। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज यू हैव टू divide the cost of the basic allocation cell. These are the basic allocation cell. This is the basic cell. This is the basic cell. This is non-basic cell. Why it is non-basic cell? As there is no basic allocation. जहाँ पर basic allocation नहीं है तो उसको हम लोग non-basic cell बोलते हैं। तो उसका कॉस्ट नहीं, ये तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना। तो बेसिक सेल का जो कॉस्ट है उसको डुअल वेरिएबल में बांट देना है। डुअल वेरिएबल रो एंड कॉलम में बांट देना है। तो मैंने पहले करके दिखाता हूँ, उसका पीछे जो मैथमेटिकल प्रोसेस है एक बार मैं कोई वीडियो में दिखाया ऑलरेडी, यू कैन चेक इट। तो उसमें थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, नथिंग एल्स, इसमें थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। इट इज प्रैक्टिस इन एग्जाम ऑल्सो, यू विल नॉट गेट दैट मच टाइम। अगर टाइम मिलता है तो करके भी दिखा सकते हैं। तो रूल क्या है, टू बाइफार्केट द कॉस्ट ऑफ द बेसिक सेल इन टू पार्ट्स, रो एंड कॉलम वेरिएबल। वो मैं दिखाता हूँ किस तरह से, सो दैट इफ यू ऐड देन यू विल गेट दिस कॉस्ट। पहले जो हम बता रहे हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं एक बार करके दिखाता हूँ, एक बार इधर मिटा देंगे फिर करके दिखाते हैं, तो देखोगे धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो हाउ विल डू इट, तो जब इसमें सबसे एलोकेशन ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर जीरो रख दिया और बाकी इसी का ऐड करने से यहाँ आ जाएगा 17, 12 एंड 11 सीधा ले दिया। चलो, व्हाई यू हैव रिटन दिस, द रीजन इज दैट द रूल इज if you add this to row variable value is this and column value is this. If you add this, then this will come. As one is zero taken, that's automatically you can write directly that amount. क्योंकि इसका साथ ये जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, इसी तरह से इसका साथ ये जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन हमको ये भी निकलना है, ये भी निकलना है, ये भी निकलना है विद द हेल्प ऑफ बेसिक सेल्स। वो कैसे, दैट आई एम गोइंग टू शो यू। फर्स्ट चांस में समझ में नहीं भी आ सकता है तो मैं इसको मिटा देंगे, फिर आई रिपीट इट तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लेंगे, इसलिए मैं सेपरेट वीडियो में ऐसा किया है। ये बेसिक सॉल्यूशन मैंने बगल से लिया है, इसको अगला अदर्स वीडियो में मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। अच्छा, अब मैं ऐसा इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे, देखो ऑटोमेटिक निकाल जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस, अच्छा ये जो है विद द हेल्प ऑफ बेसिक सेल, इसको बांट देना है। ये जो बेसिक सेल है ये 8 को, तो ये रो एंड कॉलम वेरिएबल को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज द वन। तो 8 माइनस 17 मतलब -9। देखो, इसलिए माइनस, इससे अगर माइनस का चिन्ह लिख के रखोगे तो क्या हो जाएगा, रो एंड कॉलम ये प्लस दिस, ये आ रहा है ना। 17 माइनस 9 अगर करोगे तो 8 आ रहा है, बांट दिया, ठीक है, इसी तरह से। अच्छा, जीरो मिल गया हमको, ये करना है, ये करना है, तो ये कैसा आएगा, देखो ये आना ही है क्योंकि इसका सिस्टम ऐसा है, वो आ जाएगा। तो 9 है, दिस इज 9 और यहाँ 11 है विद द हेल्प ऑफ बेसिक सेल। ये नहीं सब छोड़ देना है, अभी कुछ नहीं। तो विद द हेल्प ऑफ बेसिक सेल हमको ये भर देना है, इसका जो खाली है अभी इसका। तो 9 माइनस 11 तो क्या, -2, ये -2 लेते हैं। तो देखो ये दोनों जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा रो एंड कॉलम का। अभी भी ये सब बाकी है, तो ये कहाँ से आएगा, हाउ यू गेट दिस वैल्यू, पहले ये देखो आ ही जाएगा सबका, इसका सिस्टम ऐसे 10 माइनस दिस करने से ये आ जाएगा, माइनस का माइनस तो ये आ जाएगा +12। कैसे, देखो 10 माइनस और -2 तो 12 हो रहा है ना, 12। तो अब ऐसा क्यों किए, तो दिस प्लस दिस ये करने से 10 आ रहा है। ये कॉस्ट को मैं 2 कंपोनेंट में बांट दिया, ये रो एंड कॉलम वेरिएबल। तो अभी भी कौन सा बाकी है, दिस बाकी है, ये बाकी है। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से निकल जाएगा। ये थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है, मेरा प्रैक्टिस है इसलिए इतना आसानी से हो रहा है। 13 माइनस 12 इससे ये माइनस कर दो जिससे, तो ये हो जाएगा, क्योंकि देखो ये अगर प्लस ऐड करते हैं तो 13 आ रहा है ना, 13। बाकी कौन सा रहेगा, ये तो ये 1 है, 10 है, तो 10 माइनस 1 तो ये 9। ये देखो तुम्हारा सारा वेरिएबल आ गया, ठीक है। एक्चुअली ये जो वेरिएबल है इसका, मान लो कि अगर मैंने इसका UI से लिखते हैं UI, तो दिस इज U1 प्लस U2 प्लस ये U3 U4 वेरिएबल, और ये VJ, तो ये हो जाएगा दिस इज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ये V5। इस तरह से डुअल वेरिएबल में मैं बांट दिया, इसको बोलते हैं रो वेरिएबल्स और ये कॉलम वेरिएबल्स रिक्वायरमेंट्स का। ये प्रोसेस है, मैं इसको एक बार रिपीट करके दिखाऊंगा, यहीं दिखाएंगे ऑपरेट में, नहीं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। पहले मैं एक बार प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ, उसका बाद मैं दिखाऊंगा अब क्या करना है इसका बाद में। जैसे UI भी
का वैल्यू निकल जाता है तो नेक्स्ट स्टेप है ये जो नॉन बेसिक सेल है, नॉन बेसिक सेल में ये दोनों वेरिएबल का एडिशन यहाँ उतार देना। मैं यहाँ गोल गोल करके रख जब नॉन बेसिक सेल गलती ना हो जाए मैं डिफरेंट कलर यूज किया, इसको मैं और एक बार दिखाएंगे, डोंट वरी, यह यस करके मैं दिखाएंगे। जीरो जीरो कैसे किया, तो मेरा प्रैक्टिस है इसलिए जल्दी कर रहे हैं, तो यू ऑल्सो हैव टू बी अंडरस्टूड दिस। तो ये जो सर्कल रखा है इस सर्कल के अंदर में यू आई प्लस वी जे एक और डालना है, तो ये सर्कल का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस सर्कल का वैल्यू यू आई प्लस वी जे, ये रो एंड कॉलम का यहाँ 12 और -9, 12 प्लस -9 का होता है क्या 3, इसका अंदर में वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 12 और -9, ये 12 है और ये -9, दोनों को जोड़ के रखना है, y प्लस वीजे। यहाँ पर कितना वैल्यू हो जाएगा 11 और -9, तो क्या हो जाएगा 2, ये 9 -9, ये 0, ये 9 एंड -2, दिस इज 7। यहाँ भी छूट गया, ये नॉन बेसिक सेल है, सब नॉन बेसिक सेल को मेरे को चेक करना है तो ऑप्टिमम आया कि नहीं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 12 और -2, दैट इज 10, दैट इज 10। This is 17 minus 2, that is 15, और 12 और 0 दोनों को ऐड कर देना है, तो 12, ये 17 प्लस 1 तो 18 आ रहा है, 12 प्लस 1 13 आ रहा है, तो 11 प्लस 1 11 प्लस 1 तो 12, और ये कितना आ रहा है 9 प्लस 0 9। इस तरह से सारा नॉन बेसिक सेल का वैल्यू मैंने इस फॉर्मूला से निकाला, यू आई प्लस वी जे। और फाइनली मैं इसी टेबल पर ही दिखा रहे हैं, अलग टेबल नहीं करेंगे, जो ऑप्टिमम आया कि नहीं उसको मैं रेट से कर देता हूँ। क्या करेंगे कैलकुलेट करके, ये नॉन बेसिक का फिर ये सब जो कर रहे कारण है कि जो मेरा एलोकेशन बेसिक का है तो वो बेस्ट है कि उससे और इम्प्रूव हो सकता है, तो इसका लिए मैं देख रहा हूँ। तो इसको ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल ये इसी पर चेक करना है, तो बेसिक को नहीं चेक करना है, बेसिक का तो एलोकेशन है ही, बट यू हैव टू चेक जो कोई दूसरा जगह पर और एलोकेशन लाने से तुम्हारा कॉस्ट घटेगा कि नहीं, उसका फॉर्मूला, उसका रूल जो है दैट आई विल डिस्कस। तो ट्रायंगल में क्या निकालना है, ट्रायंगल का सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, मतलब कि ये डी आई जे होता है डिफरेंस इज इक्वल टू दिस। ये अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है तो सारा सेल का नॉन बेसिक सेल का देन यू हैव रीच्ड टू द ऑप्टिमम, दैट मीन्स तुम्हारा जो बेसिक एलोकेशंस है वो ऑप्टिमम ही है। अगर नहीं आता है तो क्या होगा, तो मैं उस रिपोर्ट बताएंगे, तब आप फिर उसको सुधारना पड़ेगा, बेसिक एलोकेशन को, यू हैव टू चेंज इट। तो फॉर्मूला क्या है, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। ये तो मैंने कैलकुलेट करके सारा सर्कल में रख दिया, इस सर्कल में यू आई प्लस वी जे, तो एक्चुअली यू आई प्लस वी जे, इन दिस केस यू वन प्लस वी जे वी वन, इस तरह से सबका इस सर्कल में डाल दिया। और इस ट्रायंगल में डालेंगे सी आई जे, मतलब ये कॉस्ट से ये जोड़ को माइनस कर देगा, दैट मीन्स 13 माइनस 0 क्या हो जाएगा बाबू 13। खाली ये नॉन बेसिक सेल का देखें, 31 माइनस 3 28, ठीक है, 20 माइनस 3 17 प्लस, इधर देखो यहाँ भी ट्रायंगल पड़ेगा, ये भी तो लिखा ही नहीं ये, तो ये 17 14 माइनस 7 तो प्लस 7, ये कॉस्ट से ये यू आई बने तब ये भी 7 26 कॉस्ट माइनस यू आई प्लस वी, तो ये कितना हो जाएगा 11, ये 25 माइनस 9 कितना हो रहा है 16 प्लस 25, 15 माइनस 12 ये कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर 21 प्लस 9। अच्छा यहाँ नहीं लिखा है, ये सिंपली पॉजिटिव लिखता हूँ, पॉजिटिव से मतलब है कि एन इज ट्रिमेंडस हाई, तो उससे 2 माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही ना होगा, तो ये भी पॉजिटिव, क्योंकि ये भी ट्रिमेंडस हाई तो उससे 18 माइनस कर रहे हैं तो पॉजिटिव जाएगा, और ये प्लस 40। तो यहाँ सारा वैल्यू वन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, इसलिए जो भी मेरा बेसिक एलोकेशंस ऑलरेडी मैं डाले हैं दैट इज द बेस्ट, और कोई इम्प्रूवमेंट का जगह नहीं है। आई थिंक इट इज क्लियर हो गया। तो मैं इसी प्रॉब्लम को ही और एक बार दिखाते हैं, जब इट इज अ चांस कि एप्सिलॉन यहाँ पर रखें तो ये ऑप्टिमम आ गया, समझने का कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन मैंने तो नहीं जानता भाई, तो कोई गॉड तो है नहीं, ये तो थोड़ा ट्रायल एरर मेथड है। अगर ये एप्सिलॉन में तो यह भी रख सकते हैं, या तो रखने से स्क्वायर नहीं बन रहा था, यह भी 3 ही तो आ रहा था, तब देखोगे ऑप्टिमम नहीं आएगा, तब देखोगे फिर कोई ना कोई नेगेटिव आता है। तब उस समय क्या है, एप्सिलॉन को चेंज करना पड़ेगा पोजीशन, बाकी ऐसा ही जगह पर बैठ जाएगा यहाँ पर, तभी अगर बेस्ट होगा। तो जिसने एग्जाम में सही जगह पर पुट कर देगा लकीली, तो उसको थोड़ा टाइम बचेगा, और जो गलत जगह पर पुट करेगा उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको तो वहाँ पर आना ही है। तो मैं इसका पोजीशन चेंज करके और एक बार धीरे धीरे कैलकुलेशन प्रोसेस इसी में दिखाता हूँ, सो दैट कि इसमें थोड़ा सा आइडिया आ जाए। द यू भी का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ क्या क्यों जीरो रखे हैं, ये करके ये सब वैल्यू क्या निकाले हैं, ये समझने के लिए एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, यहाँ डिटेल कैलकुलेशन दिखाएंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको दिखाना नहीं चाह रहा। एक्चुअली कैटवर है 8 कॉस्ट है, और इसी को डिवाइड किया तो 8 कॉस्ट को डिवाइड किया तो 8 इक्वेशंस मिलेगा। 8 इक्वेशन है, 9 वेरिएबल है। प्रॉब्लम इज दिस, 8 इक्वेशन है, 9 वेरिएबल है। तो हम लोग 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हैं यूनिकोड में, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हो जाता है, लेकिन 8 इक्वेशन वेरिएबल ज़्यादा, तो क्या है कोई ना कोई एक वेरिएबल को जीरो करना पड़ेगा, तभी जाके यू कैन सॉल्व इट। और यहाँ पर मैंने वही किया, एक वेरिएबल को फोर्स जीरो कर दिया। तो ये टेक्निकल ये प्रोसेस से थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। लेकिन अगर वो प्रोसेस देखा तो इसको मैं मिटा देता हूँ, प्रोबेबली यू हैव नोटेड इट। तो मैं उसको एक बार थोड़ा सा दिखा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो थोड़ा ब्लैक रह जाएगा ना, माइंड में घूमता रहेगा सब क्या किए हैं, ये समझ में नहीं आया, काहे जीरो कर दिए, काहे से कर दिए। तो फॉर दैट रीजन हमने एक बार दिखा देते हैं। जैसा मतलब इसको इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, तो ये u1 प्लस v4, u1 प्लस v4 इज इक्वल टू 8। मैं ब्लैक से लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। अच्छा, दूसरा तुम्हारा बेसिक सेल का है, उसको उसको ना 9 को लिखेंगे। 9 का क्या हो जाएगा, v2 और u2 प्लस v2 इज इक्वल टू 9। ये एक इक्वेशन बन गया। फिर इससे बेसिक सेल जाओ 10 को u2 प्लस v5 प्लस v5 इज इक्वल टू 10। इसी तरह से क्या कर दे, हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, पूरा करने जाएंगे तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। तो बेसिक सेल आउट का है, मैं एक इसको दिखाता हूँ। और ये क्या हो जाएगा, u3 और v4, u3 प्लस v4 इज इक्वल टू 12, सॉरी 13 को कर रहे थे, u3 प्लस v4 u3 प्लस v4 17, इसको या इसी तरह से सब इक्वेशन तुम 8 इक्वेशंस बनाओगे, तब देखोगे कोई एक इक्वेशन को u3 का है, u3 को मैंने जीरो लिया, तो इफ यू पुट u3 इज इक्वल टू 0, इफ u3 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, एक को जीरो करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट सॉल्व इट, क्योंकि 8 इक्वेशन है, 9 वेरिएबल है। तो तुम्हारा v4 कितना आ रहा है, v4 इज इक्वल टू 17, वही देखो v4 इज इक्वल टू 17 आया। अच्छा, v4 17 आया, v4 का और कोई इक्वेशन है तो मैं दिखा देता हूँ, v4 का तो दूसरा निकल जाएगा। इसी तरह से v4 तो ले लिया है, v4 का ये था ना 8 इज इक्वल टू v, हाँ, तो v4 का वैल्यू तुम अगर 17 पुट करते हो तो u1 कितना निकल जाएगा, 17 निकालते हो तो u1 इज इक्वल टू, ये 17 है तो 8 माइनस 17 और माइनस 9, देखो u1 माइनस 9। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस, तुमको फिर से मैं बता देता हूँ, तुम चाहे तो एक बार करके दिखाओ, अगर एग्जाम में छोटा प्रॉब्लम देता है, टाइम बहुत है, तो तुम एक बार करा के दिखाओगे। जो बेसिक सेल का कॉस्ट है, पहले वेरिएबल को लिख लो, इस तरह से इक्वेशन बना लेना है, कोई एक को जीरो कर दो और एक को जीरो करके उसको पुट करते चलो जाओ, तो सबका वैल्यू निकल जाएगा। भाई वही यहाँ पर डायरेक्टली किया है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को और एक बार सॉल्व कर देंगे, क्योंकि सर आप तो जानबूझ के यहाँ पर पुट कर दिए, इसलिए आपको एक चांस में निकल गया, लेकिन मैं यहाँ पर पुट करूँगा कुछ दूसरा जगह, तब क्या होगा दिखाइए, इसका लिए मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो इसको बीटा के तो मैं और एक बार करके दिखाता हूँ सेम प्रॉब्लम को। तो ये तो सॉल्व हो गया, तो इसके लिए तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एनालिसिस क्या जो वैब में था वही तुम्हारा रिजल्ट हो गया, आई थिंक इज क्लियर। और इसका मल्टीप्लाई करने से जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो ये नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, ये कॉस्ट पर यूनिट 12, ये मान लो 0.0000 माइक्रोग्राम, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो पैसा भी तो 0.000, इसको निगलेक्ट करेंगे। तो तुम्हारा रिजल्ट जो हैम से आया अभी तक देखा वही रिजल्ट है, कोई चेंज हुआ नहीं, वही बेस्ट एलोकेशन है। लेकिन मॉडी अप्लाई करने के लिए मास टाइम मॉडी, तो सर वहाँ पर जब था तो इसको क्यों किए, क्योंकि इससे जो है मैं निश्चित हो जाता हूँ कि इससे और कॉस्ट ऑफ रिडक्शन कर नहीं सकता। और कॉन्फर्मेशन टेस्ट, इट इज द कॉन्फर्मेशन टेस्ट। ओके, नाउ एक बार मैं थोड़ा जल्दी इस फाइल को दूसरा जगह पुट करके सेम प्रॉब्लम को दिखा देते हैं। इस बार थोड़ा सा हाई स्पीड पर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पूरा सॉल्व किया।
तो थोड़ा शॉर्टकट में मैं दिखाएंगे जल्दी से, जो गलती जगह पुट करने से क्या होता है इसको भी मैं दिखाता हूँ। तो ये हमारा 4/5 प्रॉब्लम, 4, 1 2 3 4 5, 4 हो गए, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4, 4 रोज 5 है पिछले में, तो ज़्यादा लिख दिया। तो ये हो ये 4 एंड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, A B C D E. Same problem I am solving, I am applying body by तो बेसिक एलोकेशंस को लिख लेता हूँ, तो मेरे पास जो नोट किया है उसी से बदल ले लेता हूँ। अच्छा, कॉस्ट 13 13 एम 31 8 31 8 एंड 20 20 14 9 14 9 17 26 and 10 25, that is 25 11 12 11 12 25 11 12 17 15 17 and 15 10 21 10 21 13 10 and 17, ठीक है। और बेसिक एलोकेशन कहा था 8 200 200 15, दिस इज बेसिक एलोकेशन 15 160। किसी बुक में ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में लिखा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक बार मिला लोगे तो यू कैन फॉलो एज पर योर ओन चॉइस, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है। 25 30 17 पर 30 110 110 120 120 this is the basic allocation as per Bhaim method. Now the question is जो एप्सिलॉन कहाँ पर रखे, मैंने कौन सा रखे थे पहले, कहाँ पर रखे थे, आई थिंक इसको मैंने रखे थे 0 बोला है, ठीक है। तो अगेन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर मॉडी, you check the total number of allocation must be n plus n minus 1. My m is 4 और n is 5 minus 1 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो एक आर्टिफिशियल पुट करना पड़ेगा सो दैट कि थोड़ा ऑप्टिमम हो जाए। आर्टिफिशियली मैं कहाँ रखेंगे, पहले मैं जहाँ तक याद पड़ रहा है मैं यहाँ पर रखा था, यहाँ पर रखा था, लेकिन मान लो कि मैं यह नहीं रखे, मैं यहाँ पर रखे थे, यहाँ पर रखे थे, तो क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ पर रखिए तो कोई स्क्वायर तो बना नहीं है, स्क्वायर यहाँ पर नहीं रख सकता, इट इज नॉट अलाउड, यहाँ पर नो। सर क्यों, ये स्क्वायर बन गया चारों कॉर्नर, ये नहीं, इट इज नॉट अलाउड। तो यू हैव टू पुट एप्सिलॉन इन सच ए वे कोई स्क्वायर ना बन जाए, स्क्वायर बनने से नहीं होगा। यहाँ पर भी रख सकते हैं, कोई स्क्वायर नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ रखने से हाँ स्क्वायर नहीं बन रहा है, यहाँ भी रख सकते हैं, कोई स्क्वायर नहीं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते, ये नहीं था, तो इस तरह का, तो मैंने शायद यहाँ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा चेक करते हैं। अच्छा एक बार मैं ये आपके कर करके दिखाता हूँ, जो प्रोसेस लास्ट टाइम दिए थे क्या थे, हाईएस्ट एलोकेशन रो वाइज और कॉलम वाइज जहाँ रहेगा वहाँ पर 0 पुट कर दोगे, लेकिन फिर भी एडवांटेज फॉर थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और नहीं भी कर तो पर भी हो जाएगा, खाली वैल्यू चेंज हो जाता है, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली सॉल्यूशन ठीक हो जाएगा, एक रिजल्ट आएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। दिस इज 9, दिस इज थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो 10, क्योंकि दिस प्लस दिस ये आ जाता है, दिस प्लस दिस ये आ जाता है। अच्छा अब ये सबको निकलना है, ये भी निकलना है, ये निकलना है, ये निकलना है, तो कैसे निकालेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ बेसिक सेल, ये बेसिक सेल है, ये 13 - 70, दिस इज -, ठीक है, इसका वैल्यू अलग हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि मैंने अलग जगह से शुरू किया ना, क्योंकि 0 पुट किया दूसरा वेरिएबल को, वहाँ एक वेरिएबल को पुट किया था, अभी दूसरा वेरिएबल को, लेकिन रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, ये डुअल वेरिएबल का वैल्यू अलग हो जाएगा, इफेक्ट डिवाइस से, ठीक है, तो ये मेरा निकल गया। अच्छा तो विद द हेल्प ऑफ दिस, ये देखो बेसिक सेल है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आ जाएगा, ये 10 - 4 इज 40, ये दोनों जोड़ो तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को ये निकल रहा है, तो ये मिल गया 11 - 9, तो 11 - 9 मीन्स 2, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, जब 17 है, 17 - 2 दिस इज 15, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा बेसिक सेल का थ्रू, तो यहाँ
जीरो है, 10 भी आ गया, तो बाकी को ट्राई करें, इधर तक तो सारा हो गया, यहाँ एक बाकी है। ये कैसे देख लगा, 8 15, 8 माइनस 15 मीन्स 7, 8 माइनस 15 मीन्स 7, दोनों जीरो को 8 आ गया। इस तरह से निकाल। अब देखो ऐसे ही सर्कल निकालते हैं सबका, सर्कल नॉन बेसिक सेल का ये सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल नॉन बेसिक सेल, ये नॉन बेसिक सेल है, ये नॉन बेसिक सेल का छोटे नहीं, इसलिए मैं पहले ही सर्कल बना लेता हूँ। यहाँ नहीं, नॉन बेसिक सेल, नॉन बेसिक सेल का, ये नॉन बेसिक सेल का मैं सबको बना लिया, नॉन बेसिक सेल बना लिया। तो क्या करना है, यू आई प्लस भेजे, जैसा ये था बोला सीधा यू आई, दिस इज U1, दिस इज U2, दिस इज U3 एंड दिस इज U4। सिमिलरली ये VJ, दिस इज V1, V2, this is V3, this is V4 and this is V5। तो UI प्लस VJ को यहाँ डाल देना, तो रो एड कॉलम का -7 प्लस 10, दिस इज 3, यहाँ पर 17 माइनस 10, 9 माइनस 7 प्लस 2, दिस इज 14 माइनस 7 प्लस 7, 14, दिस इज 14 प्लस 0, 14, यहाँ 14 पावर 2, दिस इज 16, और यहाँ देखो 17 प्लस 2 19, 15 है ना, तो ये 10 प्लस 2 12। अगर कोई गलती हो जाए तो देख लेना, क्योंकि मैं फास्ट कर रहा हूँ, मिस्टेक मेरे से भी हो सकता है, लेकिन यू कैन करेक्ट इट। ये 6 दोनों को जोड़ो तो 15, ये 11, और ये 9 माइनस 5 तो प्लस 5 हो गया सारा से, ये छुटा है 15 और प्लस 0 ये 15 हो गया। तो ये होने के बाद क्या करना है, ट्रायंगल का वैल्यू निकालना है। ट्रायंगल ये एक्चुअली UI प्लस VJ, ये और सॉफ्टवेयर में नेट इवैल्यूएशन करना है, नेट इवैल्यूएशन ये ट्रायंगल में मैं एक ही टेबल में कर दे रहा हूँ। प्रोफेशनल बुक्स में बहुत जगह एक ही टेबल पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, खाली एक्सप्लेन कर देना पड़ता है व्हाट इज दिस। और तो इस पर मैं डेट इवैल्यूएशन का वैल्यू दिस माइनस दिस इज CIJ माइनस UI प्लस VJ, ये जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सब जगह ऑप्टिमम होगा। देखो ये मैं खाली पॉजिटिव लिख के छोड़ देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव। ये भी देखो 31 माइनस लिख ही देते हैं 21, चलो ये भी 17 लिख ही देते हैं, तब ये कन्फ्यूज इट, ये पॉजिटिव, मेरे को पॉजिटिव से मतलब है कि व्यूज बड़ा है, 13 माइनस 7 6 पॉजिटिव, ये 0 हो जाता है, 26 ये प्लस 11। अच्छा ये क्या है 56, 21 से माइनस करने से क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा प्लस, और यहाँ ये भी पॉजिटिव, और ये 50 ये प्लस 3, यहाँ देखो नेगेटिव आ गया, एक जगह पर ये भी पॉजिटिव 16 और 9 प्लस 9 पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 12 माइनस 7 आ गया। इसका मतलब ऑप्टिमम नहीं हुआ, ऑप्टिमम नहीं हुआ, यहाँ पर एलोकेशन लाना है, यहाँ पर एलोकेशन लाना है। तो क्या करोगे, तो इस एलोकेशन को मैं यहाँ नहीं लाके तो यहाँ पर भी सीधा रख सकते हैं, और ये तो कैसे लाओगे उसका एक प्रोसेस मैं डिटेल बता देता हूँ। तो आई थिंक इट इज क्लियर, क्योंकि पहला बार जो है लास्ट टाइम ये राइट जगह पर हम लोग पुट कर दिए थे यहाँ पर, इसलिए ये हो गया था। तो लेकिन यहाँ पर जो है नहीं किए थे, ये मैथमेटिकल प्रोसेस बोल रहा है कि यहाँ पर लाना चाहिए, तब जाके दोबारा ऑप्टिमाइज होगा। तो कैसे लाएंगे, तो ये मानो कोई वेरिएबल मैं थीटा लाता हूँ, थीटा, तो थीटा यहाँ पर रखना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ये लोकेशन रिवाइज करना है। इसको सेट कैसे करेंगे, एक कॉर्नर से 11 माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा, प्लस आप थीटा लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, देखो एक्स मैं पी लिखूंगा, लिखो। अच्छा ऐसा क्यों किया, कॉर्नर से, क्योंकि अगर थीटा ये लिख देते हैं तो यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ बढ़ जाएगा, दैट मीन्स तुम्हारा जो है कैपेसिटी बढ़ जाएगा, वो तो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बैलेंस करने के लिए माइनस किया, जितना यहाँ जोड़ रहे हैं वहाँ इतना माइनस करेंगे। अब इधर अगर माइनस करते हैं, ये नहीं करते तो इधर घट जाएगा, तो ये चारों कॉर्नर से इस सेट कर यहाँ जोड़ोगे, देयर इज नो इफेक्ट, थीटा माइनस थीटा है, इधर से भी एक प्लस एक माइनस है तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इधर से कोई इफेक्ट नहीं, तो चारों कॉर्नर से इसलिए एडजस्ट करते हैं। और थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, जो मिनिमम डिफरेंस होगा उसी को दोनों में कुल सम ही भाई एप्सिलॉन में, एप्सिलॉन सबसे छोटा है ना ये, और ये -75 माइनस थीटा, दोनों में एक ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए इक्वल टू 0 कर देते हैं, कोई एक को 0 कर देंगे, तो दोनों में से जो मिनिमम है उसको रखना है। तो ये करने से तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ये बहुत छोटा है, और यहाँ थीटा का 75, इसको लेना नहीं है, क्योंकि थीटा लेंगे 75 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 75 करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा ना थीटा,
एप्सिलॉन माइनस 75 इज द बिग अमाउंट होने करके क्या किया, आई एम डूइंग थीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो क्या हो जाएगा, इसको रिवाइज करने से तो नेक्स्ट टेबल पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं इसी पर कर देता हूँ, आगे अब मैं और नहीं दिखाएंगे। तो खाली एप्सिलॉन यहाँ बैठ गया, ये एप्सिलॉन आ गया, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन किया तो ये तो वैनिश हो जाएगा, इट विल बी वैनिश्ड। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन को जोड़ते हैं 15 का साथ, एज्यूम करके वही रहेगा, क्योंकि से कि 15 kg है और वहाँ 0.00000 माइक्रोग्राम थीटा का वैल्यू जो एप्सिलॉन है, इसलिए देयर विल नॉट चेंज एनी वैल्यू, और माइनस भी करते हैं तो इट विल नॉट चेंज एनी वैल्यू। तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्शन एजम्पशन इस पर इस तरह से अप्लाई होगा। तो ये रिवाइज्ड जो एलोकेशंस है सब एज इट इज है, एप्सिलॉन का पोजीशन चेंज हो गया ऑटोमेटिक। इसका बात तो मैंने ऑलरेडी दिखाया है तुमको पहले वाला प्रॉब्लम में, इसको फ्रेश टेबल में लिख के तो सॉल्व करना है, उसको मैं फिर से दोबारा नहीं दिखा रहा हूँ, तो मैंने गलत जगह बैठाया था, इसलिए तुमको एक स्टेप ज्यादा करना पड़ा। वो जो स्टेप मैं ऑलरेडी अभी दिखाया है, तो वो स्टेप करके फिर एप्सिलॉन यहाँ पर आएगा, फिर सॉल्व करोगे तो ऑप्टिमम आ जाएगा, क्योंकि सारा उसमें आई तक ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो रहा था। तो आई थिंक इतना तो समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना है, आई विल अगेन डिस्कस और उसमें आई विल एक्सप्लेन इट, नो इश्यूज। ये क्या मैं दोबारा दिखाया, क्योंकि एक आर्टिफिशियली एक छोटा सा वैल्यू मैंने किसी एक सेल में पुट करके रखा था, इसलिए क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ एलोकेशंस n प्लस n माइनस 1 करना है, अदरवाइज आई कांट प्रोसीड एज पर बॉडी, क्योंकि जो सारा वैल्यू जो मेरा निकल रहा था वो नहीं निकलता, क्योंकि 7 एलोकेशन होने से नहीं चलेगा, उससे कम एलोकेशन होने से नहीं चलेगा, इसको डीजेनरेसी केस बोलते हैं। तो डीजेनरेसी केस में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को, एक वैल्यू को पुट करना पड़ता है। तो वो कहाँ पर रखेंगे, ये एक ही रूल है, जो कोई स्क्वायर ना बन जाए, जो मेरा बेसिक सेल जो है, बेसिक एलोकेशन जो है, उससे वो रखने से कोई स्क्वायर ना बन जाए। जैसे मैंने ये यहाँ पर कांट पुट डिसेंडिंग, इस तरह से कोई जहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा वहाँ पर नहीं रख सकते, जैसे ये है, ये यहाँ पर नहीं रख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर हो जाता है ना, ऐसा, तो यहाँ पर नहीं रख सकते। तो अब तो उस तरह का बहुत पोजीशन है, मैं कहाँ रखूंगा, तो मेरे को तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। तो उसमें मैंने कोई एक जगह पर रख रहे हैं जहाँ स्क्वायर नहीं बन रहा है, देन विल ट्राई द बॉडी, जैसा रूल बताया, यू भी का वैल्यू निकाल के, यू प्लस भी का वैल्यू निकाल के नेट इवैल्यूएशन करके मैं चेक करूँ कि सारा नेट इवैल्यूएशन जो वैल्यू जो आ रहा है डी आई जे जो है सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, ये जो है ये सारा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, जो उस समय में होता सारा ग्रेटर देन, कोई नेगेटिव नहीं था। लेकिन मैंने गलत जगह जैसे एप्सिलॉन बैठाया तो कोई एक सेल में एप्सिलॉन जो वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ नेगेटिव आ रहा था इसका मतलब यू शुड पुट एलोकेशन टू दैट सेल। तो या तो आर्टिफिशियल की स्मॉल क्वांटिटी बैठाया था इसलिए कोई वैल्यू अंतर नहीं पड़ा, तो लेकिन तुमको एप्सिलॉन का पोजीशन चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं दिखाया। तो दिस इज ऑल अबाउट, दो इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इतना बड़ा प्रॉब्लम था शुरू में। तो जो पहला वीडियो में मैं दिखाया वो इनफिजिबल था, जो एम लगाया एम क्यू लगाया उसमें बता दिया गया है, क्योंकि वो इनफिजिबल रूट है, उस सोर्स से उस डेस्टिनेशन में आप सामान नहीं ले जा सकते हैं। कभी कभी रोड खराब रहता है, रोड ब्लॉकेट रहता है, या कोई वीआईपी रोड है गवर्नमेंट से ब्लॉकेट किया गया है, तो बहुत सारे रीजन का चलते हुए रूट ब्लॉक है। तो उसको लेते हुए ट्रिक कैसे तुम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को अप्लाई करोगे वैन एंड मोडी, वो मैंने देखा, इसलिए ये बिग एम ह्यूज हाई कॉस्ट को वहाँ पुट कर दिए जहाँ एम से इंडिकेट कर रहे हैं। तो वो करके एक तो वो स्पेशल टाइप था। दूसरा बात यहाँ डिजेनरेसी का भी केस है, जो ये नंबर ऑफ बेसिक एलोकेशन जो है वो m प्लस n माइनस 1 से कम हो जाता है। तो ये सब लेके ये प्रॉब्लम है, और ऊपर से जो है 4/5 का 4/5 का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा इसलिए लेंदी ये हो रहा है। तो इसमें सारा रूल्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू प्लीज राइट टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना है और कर देना। थैंक यू। थैंक यू।